Hello friends, welcome to EduTap. With just 15 days to go for SEBI, I think there would be some tension building up, some nervousness creeping in. कितना syllabus है, कैसे करेंगे, exam के लिए revise कैसे करेंगे, but that's something very normal, very usual to happen. I think if you are tense, nervous, anxious, it means you are a serious aspirant. But हाँ, अगर company law में आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, that there are a lot of facts to remember, बहुत सारा data है, long term memory में नहीं जा रहा है, I can help you out. In today's video, the topic is about that I'm going to tell you the trick through which you can cover company law in just 2 days. That is, even if you spend 3 to 4 hours in one day, in 2 days you will be able to cover the entire company law which is relevant or which is more important for your exam to be done. तो उस पे आज बात करते हैं कि कैसे आप कंपनी लॉ को मिनिमम टाइम में कर मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं. ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए आपको थीम समझनी पड़ेगी कि कंपनी लॉ में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड. सी व्हाट आई हैव डन इज आई हैव एनालाइज्ड द पेपर्स फॉर सेबी एंड पीएफआरडीए. आई वांटेड टू सी द एनपीएस पेपर्स आल्सो, डिडंट गेट टाइम. तो मैंने इन सेबी और पीएफआरडीए के पेपर्स को देखकर आई हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड द थीम ऑन व्हिच क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड. Now, total of 6, 8 and 10 questions were asked in SEBI phase 2, PFRDA phase 1 and PFRDA phase 2 respectively. I did not take into account SEBI phase 1. वो बहुत ही मतलब एक तरह से out of context paper था. It's not relevant to be considered for analysis. तो 6, 8 और 10 क्वेश्चन आपके आए हैं. Out of these 6, 8 and 10 questions, 5, 6 and 7 questions have been asked on one theme, I'll tell you what it is. So approximately 70%, that is 16 questions out of total 24 have been asked on this one theme. What is this theme? This theme is that they are asking you questions on important section numbers and important powers given to some entities. This is the one theme. I repeat, this one theme is important section numbers and important powers or powers given to certain entities. ठीक है, elaborate करता हूं इसको, you will get to understand it better. Now, what are the important section numbers? Important section numbers क्या हैं? देखिए, किसी भी section number में if some power is given to remove somebody, if some power is given to appoint somebody, if some body is being constituted, if some body is being registered, if somebody has power to penalize somebody, if somebody has power to issue, alter or declare anything, those section numbers are really important for you. I'll give you a lot of examples to understand this, but understand the theme, that what are the important section numbers. The section numbers which deals with any of these areas: removal, appointment, constitution, registration, penalization, issuing, alteration, declaration, all these are important section numbers. अगर आप इस थीम को पकड़कर important section numbers को याद रखेंगे, I think section number से related जितने भी question आएंगे और बहुत सारे आएंगे, आप उन सबको कर पाएंगे. Let me show you some examples. This question: the removal of director has been provided in which section of the Companies Act? First keyword, removal. Which section of the Companies Act gives power to SEBI to issue capital and transfer of shares? Issue of capital. Keyword is issue. Both these questions were asked in SEBI grade A. The issue of duplicate share certificate. Again, the keyword is issue. Which section? Section 46. The declaration of dividends has been provided in which section? Again, the keyword is declaration. Section dash of the Companies Act provides for constitution of any body. Here it is constitution of NCLT. So constitution. Dash section of the Companies Act provides for alteration of memorandum of articles. So it is about alteration. So you can see that all these questions are asking about section numbers. But only those section numbers which are important, which are giving some power to remove, penalize, appoint, alter, declare, issue, etc., etc., which all is listed here.
और देख लीजिए ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर पेपर सेबी या पीएफआरडीए में आए हैं, भर भर कर आए हैं। डैश ऑफ द कंपनीज एक्ट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, रजिस्ट्रेशन। एज पर सेक्शन 412 ऑफ द कंपनीज एक्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ द ट्रिब्यूनल एंड द चेयरपर्सन and the judicial members of the appellate tribunal shall be appointed after consultation with Chief Justice of India, again related to appointment। तो clearly यहाँ पे एक चीज visible है जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये theme important section numbers are asked, you need to remember and to know what are the important section numbers। I told you the trick, wherever somebody is given power to remove, appoint, constitute, registration, penalize, issue, alter, declare, वो सेक्शन नंबर्स आपके इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इस थीम पर चलकर सेक्शन नंबर्स को याद रखने की कोशिश करेंगे, there might be a case that you have to remember large list of section numbers, but then also I don't think that it will cross say 60-70. You can remember 60-70 section numbers as in what area they deal with or what are the important parts they डील विथ, ठीक है। तो इतना मुश्किल नहीं है, डूएबल है, यू कैन इजिली डू। अगेन स्पेशली उनके लिए जो कंपनी लॉ से बिल्कुल होप खो चुके हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, हम याद नहीं रख पाएंगे, भैया ये याद रख लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। नाउ विद इन दिस थीम, व्हेन आई टोल्ड यू दैट यू हैव टू रिमेंबर द इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर्स वेयर सम इंपॉर्टेंट पावर्स हैव बीन गिवन to certain entities, those are the important section numbers। I gave you some examples। अब वो important powers किसको दी गई हैं? An important power has been given under certain section XYZ। वो power किसको दी गई है? That is also important, the question will be asked on that thing। So ये related theme है, जो भी important section numbers हैं उनमें क्या पावर दी गई है, किसको वो पावर दी गई है, आपको ये याद रखना है और वो सेक्शन नंबर याद रखना है। सो इंपॉर्टेंट पावर्स किसको दी गई है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। विच अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स द स्पेशल ऑडिटर? अपॉइंटमेंट है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। स्पेशल ऑडिटर को अपॉइंट करने की पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ये देखने में बहुत आसान लग रहा है कि व्हेन यू विल ट्राई टू रिमेंबर दिस फैक्ट, यू विल रिमेंबर दिस इजीली, बट इन प्रैक्टिस इट बिकम्स रियली कंफ्यूजिंग। क्यों? क्योंकि जब आप डिफरेंट सेक्शन नंबर्स पढ़ेंगे वहां पे इन मेनी ऑफ द सेक्शंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल बी हैविंग सम पावर्स, इन सम ऑफ द सेक्शंस सेबी विल हैव सम पावर्स, इन सम ऑफ द सेक्शंस central government will have some power। So ultimately when question is asked you in the exam, you will be confused, चक्कर खा जाएंगे कि इस केस में पार किसके पास थी, क्योंकि कहीं ना कहीं सबके पास कोई ना कोई पार थी। So here it becomes very important that when you remember that this particular power is given to this entity and that particular power is given to that entity, you differentiate, you make a mind map in your mind with clarity। ठीक है, ऐसे ही द ऑडिटर कैन बी रिमूव्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑडिटर को कौन रिमूव कर सकता है? अगेन इंपॉर्टेंट सेक्शन रिमूवल है, लेकिन पूछा गया है ये नहीं कौन से सेक्शन के अंडर ऑडिटर रिमूव होता है, पूछा गया है कौन कर सकता है, तो पावर किसको दी गई है? रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कैन बी डन विद द अप्रूवल ऑफ, अगेन किसको वो पावर है? अब पावर या तो किसी एंटिटी को दी जाती है या देयर कैन बी कि किस मोड में है, स्पेशल रेजोल्यूशन है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है, जनरल मीटिंग है, एनुअल मीटिंग है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कैन बी डन थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन। सो दिस इज अ मोड, दिस इज नॉट एन एंटिटी। As per provision of Companies Act, every director of the company shall be appointed in a general meeting। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग नहीं, जनरल मीटिंग में अपॉइंट होना चाहिए। सो ये मोड्स भी आपको क्लियर होने चाहिए। अगेन इफ अ कंपनी वांट्स टू वेरी द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो कि प्रोस्पेक्टस में थे, उन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को कंपनी वांट्स टू वेरी, देन इट कैन बी डन विद द परमिशन ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके बहुत आते हैं। तो आई रिपीट, आप उसको सिंगल थीम मान लीजिए या दो थीम मान लीजिए, आइडिया एक ही है,
the section numbers where some powers are being given to remove, appoint, constitute, register, alter, issue, declare, etc., etc. that I have shown you earlier. Those section numbers are important. उस पे क्वेश्चन आएगा कि ये पावर के सेक्शन नंबर के अधीन दी जा रही है. Related to that, in these important section numbers, the relevant powers are given to which entity? सेबी को है, सेंट्रल गवर्नमेंट को है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को है, ऑडिटर को है, किसको है वो आपको पता होना चाहिए. और किस मोड में है भैया, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी, वो भी आपको पता होना चाहिए. ये दो थीम या एक थीम मान लीजिए, इसको पकड़कर तैयारी करेंगे. या फिर अगर कंपनी लॉ पढ़ लिया है, सर याद नहीं हो रहा है, फैक्ट्स को मेमोराइज नहीं कर पा रहे हैं, इस थीम पे जितना डेटा है उसको मेमोराइज कर लीजिए. एटलीस्ट फॉर फेज 1 यू विल बी वेरी सेफ. ठीक है, कुछ और पॉइंट्स बता देता हूं. अब आपका बहुत सारा हार्ड डेटा है, नंबर ऑफ डेज, that within certain number of days a company has to get registered, within certain number of days auditor has to file a report. ऐसे बहुत सारे days, years, penalties बहुत सारी हैं. उनको आप थोड़ा सा less emphasis दे सकते हैं. क्या ये important नहीं है? Guys, in a competitive exam ये कहना बहुत मुश्किल है. What is really important, what is not important? Because 2 questions on penalties, the entire game changes. But still, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं कि यार हो ही नहीं रहा है, आई एम रिपीटिंग द पॉइंट, फैक्ट्स याद ही नहीं रह रहे हैं, क्वेश्चंस करते हुए क्वेश्चंस में आंसर सही नहीं हो रहे हैं, कंफ्यूजन हो रहा है, फिर आप एक आसान ट्रिक यही यूज कीजिए जो मैंने आपको बताया है. उस थीम को पकड़कर पढ़िए, आपके 70-75% क्वेश्चंस ठीक हो सकते हैं. हार्ड डेटा इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेज, पेनल्टी अमाउंट्स आप छोड़ सकते हैं. ठीक है, लेकिन हाँ, डेटा और नंबर्स सच एज कोई परसेंटेज है कि डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड अप टू 30%, या कोई और भी परसेंटेज नंबर है, वो आपको याद रखना चाहिए. या फिर कोई ऐसी कंडीशन है कि 3/4 ऑफ द मेंबर्स मस्ट रेटिफाई दिस, 3/4 ऑफ द मेंबर्स मस्ट बी प्रेजेंट टू मेक इट अ कोरम, वैसे नंबर्स भी याद रखने हैं, बिकॉज दोज आर कंडीशंस, दोज आर रियली रियली इंपॉर्टेंट. फिर मैक्सिमम और मिनिमम है जहां पे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अ पब्लिक कंपनी कैन बी दिस, अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन अ मैक्सिमम ऑफ दीस नंबर ऑफ कंपनीज. वो मैक्सिमम और मिनिमम भी याद रखिए. ठीक है, तो फर्स्ट लाइन में जो मैंने बोला है उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन परसेंटेजेस, मैक्सिमम और मिनिमम, और जो कंडीशंस हैं कि इतने मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए, इतने मेंबर्स को रेटिफाई करना चाहिए, अप्रूव करना चाहिए, वो कंडीशंस थोड़ी सी याद रखिए. डेफिनेशंस को बहुत जरूरी है करना. जो भी आपकी टेक्निकल डेफिनेशंस है, डेफिनेशन ऑफ अ रिलेटिव, डेफिनेशन ऑफ अ लार्ज अंडरटेकिंग, डेफिनेशन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, डेफिनेशन ऑफ अ पब्लिक कंपनी, दोज आर रियली रियली इंपॉर्टेंट. वो आप जरूर कर लीजिएगा. इन कंपनी लॉ दोज आर गिवन इन चैप्टर 1 सेपरेटली. ठीक है, हमारे कोर्स में हमने हर चैप्टर को पढ़ाते हुए वहां पे जो भी टेक्निकल डेफिनेशन आ रही है, वी हैव कवर्ड इट देयर ओनली. ठीक है, तो यही है. इस पे एक एग्जांपल दिखा देता हूं. जैसे कि ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, द कोरम फॉर अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेल बी. तो यहाँ पे वही है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कोरम मीटिंग में होने के लिए देयर शुड बी 1/3 2 डायरेक्टर्स. व्हाट इज द कंडीशन दैट यू शुड नो. ठीक है, तो इस थीम पे पढ़िए, आई एम श्योर आप अच्छा करेंगे. और ये थीम कुछ ऐसा नहीं है कि इससे आपको बहुत लॉस हो जाएगा. एटलीस्ट इन फेज 1 यू कैन इजीली सेल थ्रू. 7-8 क्वेश्चन आए फेज 1 में, आपने 4-5 भी कर लिए, दैट इज मोर देन एनफ, आप सेफ हैं. ठीक है, फेज 2 के लिए भी अच्छी टेक्निक है. एटलीस्ट टू स्टार्ट विद गिव इंपॉर्टेंस टू दीज थीम्स एंड एरियाज व्हाट आई हैव टोल्ड यू. उसके बाद मे बी यू कैन हैव वन मोर क्विक राउंड to read other aspects also, but इसको पहले जरूर कर लीजिएगा. This can help you to cover the entire company law within just 2 days, spending 3 to 4 hours a day. ठीक है, तो ये जरूर करिएगा और करके मुझे जरूर बताइएगा कि ये ट्रिक आपको अच्छी लगी या बुरी लगी, या एग्जाम देकर बताइएगा. For now, thank you, bye bye, have a nice day, wish you best of luck for your exam.